Assalamualaikum dear students of class 9th. I hope you people are doing well. After a long break, I'm here with biology unit number 8, which is plant physiology. Today we'll do MCQs and short question number 1 to 7. So let's start. Uh, MCQs number 1 is chlorosis does not occur due to the deficiency of options are given. Chlorosis means leaves discoloration. कि लीव्स डिस्कलरेशन जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती. तो करेक्ट ऑप्शन इज फास्फोरस. Most of the uptake of water and minerals from soil takes place through सॉयल और मिनरल्स जो मोस्टली कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम सॉयल, वो किसके थ्रू, किस स्ट्रक्चर के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं. ऑफ कोर्स रूट हेयर, रूट के थ्रू किए जाते हैं, बट मैक्सिमम सरफेस एरिया क्या कवर करता है, रूट हेयर. सो रूट हेयर इज दैट स्ट्रक्चर. द शुगर मूव्स थ्रू फ्लोएम इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, जो फ्लोएम है जो शुगर को एब्जॉर्ब करता है वो मोस्टली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, स्क्रोस. Which category of plants store a small amount of water and have a thin cuticle? Thin cuticle, बहुत पतला cuticle और small amount of water भी collect करते हैं. Mesophytes मतलब medium उसमें होते हैं, circle environment में होते हैं, small amount of water store करते हैं और thin cuticle भी होती है. What is the key role of leaves in managing waste in plants? Storing waste material. What is the rate of photosynthesis become equal to the rate of transpiration in plant body? Which of the following pattern of gaseous exchange occur between plants and environment? Neither carbon dioxide nor oxygen are absorbed जब वो equal हो जाए rate. What is the role of companion cell in this translocation process? They actively transport sugar into the phloem sieve tube elements. What drives the translocation of organic solutes in plants? Differences in sugar concentration. शुगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, हाई लेवल, लो लेवल, सो इट हेल्प्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट्स. According to tech theory, what are the four factors that work together to move water and mineral up in the plant? Of course, transpiration, pull, adhesion, cohesion, and tension. What drives the bulk flow of water to top of plant according to the tech theory? Transpiration from leaves. Transpiration pull, of course. Okay, section number 2, short answer questions. Question number 1 is, why is transpiration called necessary evil? Necessary भी है but नुकसानदेह भी है. Transpiration is called necessary evil because it helps cools the plants, absorb water and minerals, and move water upward. But too much transpiration can cause water loss, wilting, and even plant death, especially in dry conditions. Basically, they're first of all they're told about the benefits, necessary requirements of transpiration के ये plants को cool रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, वाटर एब्जॉर्ब और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है. लेकिन अगर एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाए, स्पेशली इन दी ड्राई कंडीशन, जब पानी की वैसे ही कमी हो, तो क्या होता है कि वाटर लॉस इसकी वजह से वाटर लॉस हो जाता है, ज़्यादा विल्टिंग हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है, और इवन अगर ज़्यादा देर ये कंडीशन रहे तो प्लांट मर भी जाता है. What is the composition of translocating flood? The composition of a fluid, the composition of translocating fluid or phloem sap consists of about 10 to 25% of dry matter, primarily sucrose, along with other organic compounds such as amino acids, hormones, and small amounts of inorganic ions. Sucrose 10 to 25% sucrose होता है, साथ में बाकी organic और inorganic molecules होते हैं. Why gardeners like to use autumn leaves in their soil? Gardeners like to use autumn leaves in their soil because they act as natural and beneficial mulch. As they decompose, they enrich the soil with nutrients, improve soil structure, retain moisture, and suppress weeds. They also provide a habitat for beneficial microorganisms. बच्चे बेसिकली मल्च किसको कहते हैं? मल्च होते हैं
गलेसरी पौधे, ठीक है, हाफ डिकम्पोज पौधे। एज यू नो प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं। प्लांट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर भी प्रोटीन होता है, इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना होता है, इनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। फिर जब ये डेड हो जाते हैं प्लांट और ज़मीन पे गिरते हैं तो इनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो इस तरह से वो जो उनके अंदर स्ट्रक्चर में न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं नेचुरल तरीके से, मतलब अलग से फर्टिलाइजर्स नहीं लगानी पड़ती, और बहुत बेनिफिशियल मल्च होता है, ठीक है। और जब ये कंपोज होता है तो एक तो सॉइल को एनरिच करता है विद न्यूट्रिएंट्स और उनका सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, रिटेन मॉइस्चर, नमी को इंसुलेट, सॉइल इंसुलेटर बन जाता है। सॉइल डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सनलाइट नहीं होती, टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा नहीं होता, सॉइल का अंदर अंदर मॉइस्ट रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉइल के अंदर से जड़ी बूटियाँ निकलने लगती हैं उनको भी प्रेस करके रखता है, उनको उगने नहीं देता। They also provide a habitat for beneficial microorganisms. Of course, अगर पौधों के एक सॉइल के ऊपर एक लेयर होगी पौधों की, मतलब लीव्स वगैरह की, तो उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सॉइल की डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होते हैं वो इनमें रह सकते हैं। What is the effect of temperature on the rate of transportation? Rate of मतलब how increase or decrease in temperature affect the rate of transportation. Rate of transpiration increases as the temperature increases. रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है। द टेम्परेचर वार्म्स द क्यों, द टेम्परेचर वार्म्स द वाटर इनसाइड लीव्स मेकिंग इट इवेपोरेट मोर क्विकली। ये क्या करता है कि इनसाइड लीव्स जो टेम्परेचर होता है, लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसको वार्म करता है तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। As increase in temperature double the rate of transpiration for every temperature rise of about 10 degrees Celsius. हर 10 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे बढ़ता जाता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डबल होता जाता है। If temperature exceeds 30 degree centigrade to 45 degree centigrade and the stomata becomes closed. हाँ, एक लिमिट आती है कि अगर 30 to 45 क्रॉस करे तो स्टोमेटा बिल्कुल ही क्लोज हो जाता है, वो बिल्कुल ही रोक देता है। High temperatures means water molecules evaporate at a faster rate, which increases the rate of transpiration. Write any three osmotic adjustment and hydrophytes. Hydrophytes कौन से plants होते हैं जो ज़्यादा देर अंडर वाटर रहते हैं। Hydrophytes adapt to aquatic environments through three key osmotic adjustments. वो कैसे वहाँ पे अंडर वाटर कैसे सर्वाइव करते हैं इन एडजस्टमेंट्स के थ्रू, अडॉप्टेशंस के थ्रू। स्टोरिंग sugar and amino acids in vacuoles to regulate osmotic pressure, having a thin or absent cuticle with minimal stomatal activity to control water exchange, actively transporting essential ions to maintain nutrient balance and prevent overhydration. Basically क्या करते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर रहते हैं, लीव्स वाटर के अंदर रहते हैं, तो वाटर को ही वाटर नहीं देते। अगर उनके स्टोमेटो ओपन हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलती रहे तो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट होते जाएंगे। तो इस वजह से वो स्टोमेटल एक्टिविटी, वो स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज रखते हैं न्यूट्रिएंट्स को अंदर, एक ही मतलब वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। What is the pattern of gas exchange between plant and environment at the time of dawn and dusk? Dawn morning में, dusk evening में। gaseous exchange का क्या pattern रहता है? At dawn, plant begin photosynthesis as light becomes available. They take in carbon dioxide from the environment and release oxygen as byproduct. Respiration also occurs, but photosynthesis dominates, leading to net carbon dioxide intake and oxygen release. मीन्स जब सुबह फोटोसिंथेसिस लाइट अवेलेबल होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपको उसको स्टार्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और ऑक्सीजन उसका एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो उसको रिलीज किया जाता है, प्लांट के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और साथ साथ रिस्पायरेशन हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, लेकिन उसका रेट कंपेरेटिव टू फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। फोटोसिंथेसिस उसको डोमिनेट कर लेती है। तो ओवरऑल नेट कहते हैं, ओवरऑल कैलकुलेशन निकाल के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा ली जा रही होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज की जा रही होती है। एट डस्क मतलब नाइट टाइम एज लाइट फेड्स, लाइट चली जाती है, फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल स्लो हो जाती है। इवेंट्स और आखिर में
जैसे जैसे रात होती है तो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. However, respiration continues, but respiration का प्रोसेस तो अपने नॉर्मल स्पीड से कंटिन्यू होता है, मीनिंग प्लांट कंज्यूम्स, तो उसके लिए प्लांट कंज्यूम करता है ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्टिंग इन नेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट. तो रात के टाइम इस तरह से पौधे क्योंकि रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस हो नहीं हो रही होती है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस और ऑक्सीजन इनटेक कर रहा होता है. Last question for today. Why plants absorb carbon dioxide and release oxygen during daytime? कि दिन के टाइम प्लांट्स एब्जॉर्ब क्यों करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. दिस प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट यूजिंग सनलाइट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है यूजिंग सनलाइट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर कंबाइंस विद वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स वाटर एज मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है. लाइट एनर्जी ड्राइव्स द कन्वर्जन ऑफ these into glucose and oxygen. The oxygen is released as a byproduct through stomata while the plant uses glucose for energy and growth. Since photosynthesis exceeds respiration during day, plants consume more carbon dioxide and release more oxygen into the environment. I hope you understood all of these concepts which we have discussed today. Inshallah we will continue further tomorrow. Allah Hafiz.